ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਪਈ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਣ ਕੇ ਨਿਚੋੜਨੇ ਦਾ ਮਗਰ ਪਈ ਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਦੀ ਲੋਕ ਪਾਣੀਆਂ ਕਨੇ ਉੱਪਰ ਕੰਢੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮਰਾ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ जिन्ने गलत काम हो रहे हैं सब इनकी बीजेपी ने करा दी इनके मिनिस्टर करा देन ਅੱਛਾ वो मेरे पैसे जमींदार दे पैसे आते सी मेरे पैसे रोक देते ਅੱਛਾ वो बतेरा अप्लाई छपाली सब कुछ किया ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ वो नहीं करते पे हैं। ये सब एक प्रोपोगंडा था, एक ब्लैकमेलिंग का तरीका था कि हमारी दुकान ले लो, हमें कमीशन दे दो तो दुकान खोल लो। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੰਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸੁਣੋ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? देखो मैडम जी, ऐसा है कि यहाँ जो युवा पीढ़ी है इनका तो नशाखोरी से बेचारों का खराबी हो जाएगी। गरीब लोग हैं तो नशे में बच्चे जब लग जाएंगे तो ये जो युवा पीढ़ी तो ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से जहाँ नहीं खुलनी चाहिए, जो वाइन शॉप जहाँ खुली है, जहाँ भी ये वाइन शॉप है, चाहे कोई कंटीनों से लेके बेचता है, जहाँ कोई चोरी छपे, इनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए। ये परमिशन क्यों देते हैं ये लोग, जो डीसी है? ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ। हाँ तो वो डीसी ने भी दिखना चाहिए ना कि क्या इतने क्यों खोली है, क्या वजह इतने खोलने की? पैसे कमाने का चक्कर है या कोई और चीज़? हाँ जी, रेवेन्यू हाँ, नया जो है वो क्या चक्कर है? कि पैसे कमाने का चक्कर है, बच्चों को ख़त्म करने का चक्कर है। आगे ही नौकरियाँ नहीं बच्चों को मिल रही है पढ़ लिख के, तो ये नशे में जब हो जाएंगे तो ये चोरी चमारी तो करेंगे, फिर ये लोग लूटेंगे यूपी की तरह। जैसे योगी ने सुधारे हैं, उसने सुधार कर दिए यूपी में योगी जी ने। तो क्या हमारे जम्मू में कोई ऐसे अफसर नहीं है जो इन चीज़ों को देख रहे हैं? उनको भी चाहिए कि हमारे आने वाली नस्ल जो है वो कैसे रहेगी और कैसे रखना है। ਪਰ ਲੋਕੀ ਤੇ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਨੇ। खरीदे इसलिए पे ने कि आप कि उन्हें पैसे कमाने हैं। और जैसे कोई चिट्टा बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है उनके ऊपर। ये तो पूरा काम उनका होना चाहिए, ठीक है ना। ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਨ ਉਹ ਚਲਾਏ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? नहीं खुलनी नहीं चाहिए, पहली गल तो ये है ना, नहीं खुलनी चाहिए। ਠੀਕ सिस्टम ने थोड़े इजाज दिंदा है, पता नहीं की गल है इन्हें लोगों भी की करे ने। एडमिनिस्ट्रेटर के है ਠੀਕ केड़ी एडमिनिस्ट्रेटर जी गलत रस्ता ले है नी या नहीं? ਠੀਕ इस वास्ते नहीं होनी, नशा नहीं होना चाहिए ना। एक तो पहले लोग प्रॉब्लम बच्चे पढ़े थे ना, ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ डिप्रेशन च बच्चे। आप पढ़े हो ना, आप पढ़े हो तो नहीं काम मिलेगा तो डिप्रेशन होगा, फिर रॉन्ग साइड जाएंगे ना, फिर बाइन साहब तो जाना फिर उसमें, ठीक है नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਖੁੱਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 3 ਸਕੂਲ ਨੇ, 3 ਸਕੂਲ ਨੇ, ਕੋਲ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾ ਖੁੱਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਉਧਰੇ ਕਾ ਲੰਘਣਾ, ਉਧਰੇ ਕਾ ਜਾਣਾ, ਉਧਰੇ ਕਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਗਰਾਏ ਗਰੂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਾ ਦੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਪਈ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਣ ਕੇ ਨਿਚੋੜਨੇ ਦਾ ਮਗਰ ਪਈ ਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਦੀ ਲੋਕ ਪਾਣੀਆਂ ਕਨੇ ਉੱਪਰ ਕੰਢੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮਰਾ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ। ਯਾਨੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਬਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੰਮੂ ਕੋਲ, ਔਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਮਰਨ ਪਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕੂਲ, ਨਿਆਣੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ। ਬਸ ਇਹਨੇ ਬਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਪਿਆ ਹੁਣ, ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਪਈ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇਖੋ 1 ਘੰਟਾ ਆਜ਼ਾਦੀ 1 ਘੰਟਾ ਆਵਾਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਸੋਹਾ ਹੀ ਆ। ਆਮ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾ। ਬਸ ਇਹ ਬਸ ਇਹਨੇ ਫੋਟੋ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਆਇਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੋਕ ਆਏ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਏ, ਦੱਸੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁਡੇ ਬੜਾ ਕੰਮ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ? ਜੰਨੇ ਆਸ ਵੀ ਜੰਨੇ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਬਸ ਸੁਣੀ ਸਾਣੀ ਆਈ ਜੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲੇ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ? ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜੰਨੇ ਆਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੈਕ ਟੂ ਵਿਲੇਜ ਆਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਕਹਦੇ ਕਰਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਣੀ ਆਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਕਹਦੇ। ਸਰਿਆਮ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਪਾੜੀ ਆਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹਨੇ ਖਰਚਾ ਕੁੱਦੂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਸਮਝੀ ਲਓ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਇੰਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦੀ, ਇੰਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਤੇਰਾ ਅਪਲਾਈ ਛਪਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਕਰਦੀ ਰਾਇਆ ਮੋੜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ? ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ करवाने वाले भी ये ना और खोलने वाले भी ये ना। हाँ जी, मतलब ये जो फैसला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया गया है, क्या वाइन शॉप्स खुलनी चाहिए इतनी भारी संख्या में? मैम आई डोंट थिंक इससे किसी को इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। वाइन शॉप खुलने से? या बिल्कुल, एक्चुअली इट्स जस्ट आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर मैं ड्रिंक नहीं करता तो मुझे बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, नो डाउट इस सोसाइटी पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, छोटे बच्चे यूथ स्कूल्स के पास टेम्पल्स के पास नहीं होना चाहिए। बट अगर ऐसी कंडीशंस को वो फुलफ़िल करके ओपन कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक किसी को ऑब्जेक्ट करना चाहिए। अच्छा। आइदर ये सप्लाई थ्रू आउट बंद होनी चाहिए, यहाँ तो हो ही नहीं। अगर आपकी गवर्नमेंट अलो कर रही है तो देन किसी को इशू नहीं क्या है। लगता है आपको ये गवर्नमेंट क्या सोच कर ये अलाउ कर रही है जम्मू शहर में, जिसको मंदिरों का शहर कहा जाता है? ऑब्वियसली रेवेन्यू होता है। एंड जम्मू शहर की अगर आप बात करें तो 90-80-40% तो पीते ही हैं। अगर जम्मू के ऐसे यानी इससे कोई नुकसान नहीं है जम्मू और कश्मीर की जनता को? मैम जो पीता है उसको अच्छा है उसके लिए, जो नहीं पीता उसको लिए कोई इम्पैक्ट नहीं है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। नहीं होना चाहिए, इन्ना नज़दीक है, इतने बस्ती है, गाँव है नज़दीक, और इस कारण लागै नहीं होना चाहिए। बच्चे में गलत इफेक्ट पाता है। स्कूल है 12वीं क्लास तक इत्थे साढ़े जख च, तो इन्ना नज़दीक नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चे पर बड़ा भारी इसदा गलत असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। अजकल माँ प्यो कन्ने कन्ने थोड़े चल सकते हैं बच्चे दे नाल, भी इन्नी नज़दीक पैदल भी आके ले सकते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ? नहीं, ये फैसला जोड़ा है गौरमेंट ने लै रही है, गौरमेंट की चाहिए भी ये नहीं करना चाहिए। एक तरफा से बस नशा मुक्त कर देंगे, लेकिन ये तो नशा तो अपने आप वो फैला रहे हैं। ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ? मैं सप्लाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं ਨਹੀਂ कर ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, सकता। ਦੂਜੇ हाँ, ਪਾਸੇ तो दूसरे खुद ही गौरमेंट चला रही है, इससे हूँ आम जनता तो रोक नहीं सकती है क्योंकि गौरमेंट का आर्डर है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੇ? परमिशन ਲਈ है, तो उस दे विच ते भाई गलत है। अगर कोई स्ट्राइक करता या दूआ त्रीआ कोई बंदा मर जाए वो कौन भरेगा? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ? इस दे बारे च मैं कुछ नहीं बोल सकता। हूँ तो जनता दी है ये वो है आवाज़ है, तो जिन्ना मैं जानना मैं उन्ना नहीं बोलना चाहना, तो इस को अगे मैं क्या बोल सकता। मैं इस समय संजय नगर चौक में हूँ और जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार वाइन शॉप्स को लेकर जो है हंगामा चल रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और डिमांड एक ही चीज़ की कर रहे हैं कि वाइन शॉप्स जो हैं वो मंदिरों के शहर में नहीं खुलनी चाहिए। संजय नगर में एक और वाइन शॉप जो है वो खुल चुकी है और सुबह से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। मेरे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है जी। मुझे बताएं कि क्या हुआ, यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, सुबह से क्या क्या चल रहा है? मैडम यहाँ पर धन्यवाद। मैडम यहाँ पर पिछले 30 साल से संजय नगर में वाइन शॉप चल रही है। यहाँ पर सुबह से कुछ लोग
जो हमें अप्रोच कर रहे थे कि आप ये वाइन शॉप ले रहे हो, आप हमारी दुकान ले लो। अच्छा अगर हमारी दुकान ले लो तो हमारे पास और कोई काम नहीं है, हमारी दुकान ले लो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा तो जब ओनर के पास अपनी दुकान है तो वो किसी की दुकान क्यों लेगा? वो 80,000 रुपया किराया मांग रहे थे, जो हमने इनकार कर दिया। बस उसी से हंगामा था सारा। अभी आपको कोई दिख रहा है यहाँ पर? ये सब दुकान वाले हैं और कस्टमर हैं। कुछ देर पहले सुबह यहाँ पर जो यहाँ के लोग थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी डिमांड थी कि वाइन शॉप यहाँ नहीं मैडम वो ब्लैक मेलिंग का वो एक तरीका था कि वो हमारी दुकान ले लें। देखो सामने दुकान है, वो जो पहले की वाइन शॉप चल रही है वो बिल्कुल सामने है। ठीक। वो बोल रहे थे कि हमारी दुकान ले लो, फिर कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि हम जो एक्साइज डिपार्टमेंट में भी जाएंगे, वहाँ की जो डीसी साहब उनसे बातचीत करेंगे। मैडम ये लाइसेंस लीगल लाइसेंस है, हमने बिड के थ्रू लाइसेंस लिया है। ये अच्छा, प्रॉपर बिड के थ्रू लाइसेंस दिया गवर्नमेंट ने। अच्छा, और इस पॉइंट पे ऑलरेडी दुकान चल रही है। गवर्नमेंट अगर किसी नए पॉइंट पे दुकान देती है तो उसको पहले से नोटिफाई करती है वो। ठीक है। ये ऑलरेडी चल रहा था यहाँ पर लाइसेंस। यहाँ पर कुछ देर पहले एक लेडी जो है वो बातचीत करते हुए नजर आ रही थी, क्या कहा उन्होंने? मैडम मेरे साथ इतनी इंटरेक्शन नहीं हुई उस लेडी की कोई, लेकिन यहाँ पर आप देखो कोई लेडी नहीं है, अभी कोई भी लोग नहीं है उनमें से। ये सब एक प्रोपोगंडा था, एक ब्लैकमेलिंग का तरीका था कि हमारी दुकान ले लो, हमें कमीशन दे दो तो दुकान खोल लो। क्या आपकी उस दुकानदार से बातचीत थी कोई? जी मेरी डायरेक्ट कोई नहीं, उन्होंने 2-3 बार हमें मैसेज भेजा। अच्छा। किसी के थ्रू। अच्छा, हाँ जी, मेरे समधी की दुकान है ये। यानी आपके कहने का मतलब है कि आप उनकी दुकान नहीं खरीद रहे हैं इसीलिए हंगामा हुआ। अभी आप देखो एट प्रेजेंट यहाँ पर कोई बंदा है? वो कहाँ गए लोग वो? लेकिन जिस समय आपने उनसे बातचीत नहीं की, ये नहीं बताया कि ये बिड के थ्रू ली गई है, तो दुकान किस तरीके से आप उनसे... मैडम सबको पता है, ये पुलिस भी यहाँ पर है, सबको पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, लाइसेंस है प्रॉपर, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है, गवर्नमेंट ने 1,18,00,000 रुपया हमने इसकी बिड दी है। जिस तरीके से इस टाइम पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है जम्मू में, आप भी जानते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मंदिरों के शहर में लगातार वाइन शॉप्स खुल रही हैं, आपका इस पर क्या कहना है? मैडम ये लीगलाइज बिजनेस है, इसलिए ये तो गवर्नमेंट रेवेन्यू ले रही है इसका। लीगलाइज बिजनेस है, ये कोई इलीगल काम नहीं हम कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट अगर बैन कर देती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है इसमें। ठीक, शॉप के ओनर भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। अच्छा, मुझे बताएं कि आज ही सुबह ये दुकान खोली गई है? हाँ अभी खोली है, अभी 10 मिनट पहले खोली है। अच्छा। लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे प्रदर्शन कि हमारी दुकान लोग किराए पे हमें कमीशन दो। हम नहीं चाहते थे, हमारी अपनी दुकान थी, हमने अपनी खोली है। गवर्नमेंट को हमने पैसा दिया इसलिए हमने दुकान खोली है। गवर्नमेंट करवाए बंद जिसकी करवानी है। अब यहाँ के लोगों ने क्या कहा? क्या लोग कुछ नहीं कह रहे, अब कह रहे हैं खुश हैं, लेने आ रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। यानी कि लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 बंदे कोई दिक्कत थी जो कमीशन मांग रहे थे, हमने नहीं दी तो दुकान खोली है। कोई आई परेशानी? कोई नहीं परेशानी आई हमें तो दुकान खोलने में। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद थी सुबह थी, अभी नहीं है। अभी चल रहा है काम, हमारी दुकान में सेल हो रही है, काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि यहाँ के लोगों का कहना है, जो शॉप के ओनर हैं उनका कहना है कि आपसी कुछ रंजिश है जिसकी वजह से वाइन शॉप जो है वो खोलने की इजाज़त जो है वो ये लोग नहीं दे रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि दूसरी तरफ, ये संजय नगर का मेन चौक है, दूसरी तरफ एक वाइन शॉप है, वो कुछ देर पहले ही जो है बंद हुई है। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हमसे बातचीत की गई और हमें कहा गया कि अगर आप हमारी शॉप अगर आप हमारी शॉप ले लेते हैं तो उनको भी किराया आएगा। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हमने प्रॉपर बिड जो है उसके ज़रिए जो है ये दुकान खरीदी है, तो हम वो दुकान लेना चाहते ही नहीं हैं। यानी कि अब जम्मू में जो है एक अलग ही सिनेरियो जो है देखने को मिल रहा है। एक तरफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि वाइन शॉप्स जो है वो नहीं खुलनी चाहिए, और दूसरी तरफ लोगों का ये कहना है कि जब सरकार ने ही हमें अलाउ किया है, जब सरकार ही हमें प्रॉपरली जो है इस चीज़ की इजाज़त दे रही है कि आप वाइन शॉप्स खोलिए, तो हम कहाँ गलत हैं? या तो सरकार जो है कम्प्लीटली बैन लगा दे नशे पर, लेकिन दो तरफा जो है इस टाइम पे माहौल देखने को मिल रहा है कि एक तरफ नशा मुक्त अभियान चल रहा है और दूसरी तरफ जम्मू शहर में जो है वाइन शॉप्स जो हैं लगातार खुल रही हैं, लोग खरीद रहे हैं, और दूसरी तरफ जो जनता है वो परेशान है कि हमारे गली मोहल्लों में जो है वाइन शॉप्स खुलती हुई नज़र आ रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लोग जो हैं, यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, जिस समय हमने उनसे बात की संजय नगर के लोगों से, उन्होंने ये कहा कि हम जल्द ही एक्साइज डिपार्टमेंट जाकर इस बारे में बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे गली मोहल्लों में, क्योंकि अब गली मोहल्लों तक ये वाइन शॉप जो है वो पहुँच चुकी है, तो एक ही बात सुनने में आ रही है कि अब हम सरकार तक जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे और कोशिश करेंगे कि वाइन शॉप्स जो हैं हमारे गली मोहल्ले में, हमारे घर के गेटों के बाहर जो हैं वो ना खुलें। संजय नगर में जो पुरानी वाइन शॉप है, जिनके नाम पर जो है ये वाइन शॉप है, उन्हीं के जो बेटे हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार पूरा मसला जो है क्या हुआ है। मुझे बताएं कि ये जो पुरानी वाइन शॉप जो यहाँ खुली हुई है, ये आप ही के नाम पर है?
नहीं मैडम, ये जो वाइन शॉप है नाम ही मेरी मदर के नाम पे है, ये लैंड मेरी मदर के नाम पे है। उनका बड़ा बेटा होने के नाते मैं ही इसको केयर करता हूँ, जो भी प्रॉपर्टीज़ को देखभाल करनी है वो मैं ही करता हूँ। अच्छा, जो नई वाइन शॉप यहाँ खुली है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो उनके ओनर हैं वो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपसे उनकी आपसी बातचीत हुई और उन्होंने ये कहा, आपने ये कहा उनसे कि आप उनसे रेंट जो है वो ले लीजिए सो दैट के जो है वो प्रॉपर तरीके से अपना काम चला पाए, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया रेंट के लिए तो अब जो है ये इस तरीके का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। कितनी सच्चाई है इस बात? पहली बात तो ये है कि जिनको भी नई शॉप का लाइसेंस इशू हुआ है वो मेरे नोन ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं उनको। ठीक, रेंट पे की बात तो बाद में आएगी। ठीक, जब मैं पहले एक शॉप को मैंने रेंट पे दिया हुआ है और उस शॉप पे 31 मार्च तक का एक जो लाइसेंस एग्रीमेंट था मेरा वो ख़त्म हो गया। ठीक, 15 डेज़ का एक्सटेंशन मिला डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज की तरफ से, वो 15 डेज़ का उन्होंने मेरे को रेंट पे करके उन्होंने कैरी ऑन किया। ठीक, अभी मेरे साथ किसी से कोई रेंट की बात नहीं हुई है, ना ही मेरे को मालूम है कि कोई मेरे को रेंट के लिए अप्रोच कर रहा है। ठीक, इन सर्च ऑफ अदर पर्सन कि वो क्या ढूंढ रहा है, उसके पास अपनी दुकान है या मेरे पास आएगा किराए पे लेने के लिए। लेकिन मेरे को ये लग रहा था कि शायद वो कोई मेरे को अप्रोच करेगा कि इस जो पहली पार्टी है उसका रेंट डीड जो आपकी ख़त्म हो गई है तो शायद वो हमें दे दे। हमें मीन्स कि जो नेक्स्ट जो लाइसेंस होल्डर है, अब वो जो नेक्स्ट लाइसेंस होल्डर है उससे मेरी कोई बातचीत नहीं है, ना मैं उसको जानता हूँ वो कौन है। और सबसे मेन बाज़ार के अंदर हम बैठे हुए हैं। बाज़ार में कोई भी शॉप कहीं पे भी खुलती है, किस तरह से खुलती है? जब पहले ही खुली थी, जब मैंने शॉप रेंट पे दी थी तब कोई एजिटेशन नहीं हुआ था। उससे पहले भी 25-26 साल यहाँ पर एक शॉप थी जो मेरे वॉकिंग डिस्टेंस हार्डली 50 फिट्स के, मतलब 50 फीट के साथ ही वो डिस्टेंस है। और 50 फीट के डिस्टेंस के बाद मेरे को ऑप्शन आया कि वहाँ पे मेरे फ्रंट पे रोड चौड़ा है जिसके वजह से जाम नहीं लगेगा, और वहाँ पर वो शॉप पिछली बार खुल गई थी इन द मंथ ऑफ अगस्त अगेन। अभी मेरे साथ किसी से कोई बातचीत नहीं है, ना ही वो मैं- जो ना सब ही मैं- एलिगेशंस लगा रहे हैं वो सब झूठ। ना ही मैं कहीं इंटरेस्ट अपना शो किया है कि मैं आगे फर्दर सबलेट करूंगा या नहीं करूंगा, या आउटलेट करूंगा या इसको कुछ भी करूंगा। मैं, हो सकता है मुझे खुद ही काम करना है, तो मेरे पास अपनी शॉप है, मुझे सबलेट करने की क्या ज़रूरत है? मुझे उसको किसी पे किराए पे क्यों दूं मैं? यानी ऐसी कोई किराए की बातचीत आप कोई किराए की बात यानी नहीं ये जो इल्जाम लग रहे हैं ये बेबुनियाद। लगाने तो उनको पता होगा वो क्यों लगा रहे हैं, उनकी अपनी क्या इंटेंशन है, वो किस वजह से लगा रहे हैं, उनको लगाने दो। अच्छा, मुझे बताएं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनको दिक्कत हो रही है कि ये जो नई वाइन शॉप खुल रही है, क्योंकि सुबह यहाँ पर दर्शन चल रहा था, क्या आपकी उनसे कोई बातचीत हुई? नहीं, मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। इनफैक्ट मैं भी उस प्रोटेस्ट में साथ में ही खड़ा था, ठीक, लेकिन मैं सामने इस वजह से नहीं आया कि कल को कोई मेरे को ये एजुकेट करेगा या मेरे को एलिगेट करेगा कि भाई आपकी शॉप है इसलिए आप शायद इस तरह से कर रहे हो, और आपकी जब चल रही थी तो तब किसी ने एजिटेशन नहीं किया, आज दूसरा बंदा किसी और शॉप पे जा रहा है तो आप एजिटेशन कर रहे हो। तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, शॉप कहीं पे भी खुले, गवर्नमेंट का लाइसेंस है, गवर्नमेंट का सिस्टम है। जिसने पैसे खर्चने हैं वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से, कहाँ उसकी इन्वेस्टमेंट है, कहाँ उसको प्रॉफिट है, वो अपना करेगा। बहुत बहुत